हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के क्लाइमैक्स सीन के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है योगी। इसमें प्रभास है, नयनतारा है, कोटा श्रीनिवासराव, प्रदीप रावत, सुब्बराजु, आली, शारदा, चलपति राव, चंद्रमोहन, वेणु माधव, MS नारायण, बंडल गणेश और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं VV विनायक जी और म्यूजिक बाय रमण गोगला जी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। పిలవగానే వచ్చారు. అయ్యో, చాలా ఏగలు సంతోషం. ముసురుతున్నాయి. మనందరికి పుణ్యం వస్తుంది. ఇదిగో బాబు, ఈ ఏరియాలో కరెంట్ కొత్త ఉందయా. 10 నిమిషాలలో కరెంట్ పోవచ్చు. పోతే ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. తొందరగా శవాన్ని తీసుకురండి. అన్న ఒక్క దండ తీసుకొస్తా. పక్కనే కదా పూల మార్కెట్. 2 నిమిషాలాగనా? ఎందుకయ్యా నీ పనిపాడు మా పనిపాడు? కరెంటు పోతే మళ్ళీ వచ్చేదాకా ఇక్కడే ఉండాలి. అన్నీ చేసాం కదా, ఇది చేసేద్దాం. 2 నిమిషాలన్నా. తొందరగా రవయో, లేట్ అయితే నీకోసం చూడకుండా మేమే కానీ చేస్తాం. గుండు మంచిగా చూసిండ్రా? చూసామన్నా. ये कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, so I don't know what's going on. వేసేండ్రి, కానీ పోస్ట్ కేర్ మాత్రం మంచిగా చూసుకోండి. కొడుకు సత్యుండని కన్ఫర్మ్ అయ్యేంత వరకు నరుకుండ్రి. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. సరేనా? కిషడు అయ్యో గారు మనోళ్ళకి చిక్కిండ్రా. నర్సింగ్ గారు తెచ్చిండు, సైదుల్ గారు తెచ్చిండు, ఇప్పుడు యోగ గారు తెస్తాడు. దీని తల్లి సిటీ మొత్తం మళ్ళీ నా కాంపౌండ్ కంట్రోల్కి వచ్చింది. వద్దన్నా, ఆ యోగిని చంపొద్దన్నా. చచ్చిపోతున్న మనల్ని బతికించాడనా. అది చాలా మంచోడనా. చంపడం తప్పన్నా. Good guy. Ambulance then. దండి అన్న. वो इस पे अटैक करेंगे अभी। ఎవరికి రా దండ? పాప అనాథ శవన్న. దహనం చేసాక నన్ను అన్నా వద్దని చెప్పానుగా, అని చంపొద్దు. ఫోన్ చేయి. కాళ్ళ కాడుండేటోడివి కాళ్ళ కాడే ఉండు. నెత్తికెక్కకు. Oh my God. రేయ్, నా కాళ్ళకపోయినా నీతుందిరా. ప్రాణాలు కాపాడి నున్నే చంపాలనుకున్నావంటే నీలాంటి బతకూడదురా. నీ తక్కువ నా కొడక. बहुत ही अच्छे एक्टर थे यार, कोटा श्रीनिवासराव जी। Oh. इनका हाइट भी बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगता है यार। पता नहीं वीडियोस क्यों बफर हो रहे हैं बार बार। कम ऑन, सॉरी। घर का विंडो। Wait, let me take it back थोड़ा। ఒకడేమో సగం దాకా వచ్చిపోయాడు, ఇంకోడేమో ఎక్కడ దాకా వచ్చి దండని వెళ్ళాడు. ఈడొస్తాడంటావా? వాడా కరెంట్ పోద్ది అంటున్నాడు. మనం కానిచ్చేద్దాం. దండ తీసుకొస్తాను వెళ్ళాడు. ఇంత చేశాడు. పాపం శవముఖమైన చూడమంటారా. देखा नहीं है। అర్థం కదా. మెంట్లా మెంట్లరా. अच्छा था यार। शारदा जी इनकी मॉम है क्या? He doesn't know that the one who lying there is his mother. Okay, that was nice.
ఇదిగో అతను ఇంకా రాడు కానీ తీసుకురాండి అయ్యా. అనాథ శవాలకి ఇదంతా మామూలే రండి. నో నో అన్నా మాలాంటోళ్ళు చస్తే జనానికి మంచిది, మీలాంటోళ్ళు బతకడం మంచిది. అన్నా ఇల్లన్నా ఇల్లన్నా నువ్వు వెళ్ళన్నా. यार एटलीस्ट उन्होंने चेंज किया. Oh no no no, you haven't seen her face. बहुत इमोशनल सीन आने वाला है अभी. Oh no, it's too late. వచ్చే జన్మలో ఉన్న అనాథలు కాకుండా అందరూ ఉన్న దానిలో పుట్టమ్మా. Oh, ये बोलेंगे अभी. రే భాష నువ్వేంట్రా? నువ్వు ఇక్కడ ఏదో అనాశంరా, ఎవరూ లేకపోతే చివరి దాకా వచ్చా. అన్నీ బాగానే చేశానులే. అమ్మకి తెలిసి చాలా ఆనందపడతారా. నువ్వు ఆవిడని చూడలేదా? లేదురా. ఆవిడే మీ అమ్మరా? మా అమ్మ ఏంట్రా? మా అమ్మ ఏంటి? అసలు మా అమ్మ చచ్చిపోతా? నీకు వెతకడం కుదరకపోతే వదిలే. See his eyes have turned very red in an మా instant. అమ్మ చచ్చిపోయిందంటావేంట్రా? ఏంటన్నా ఈ పెచ్చిన కొడుకు? ఆడికి ఏం మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడకూడదో తెలీదా? ఆవిడ మా అమ్మ అంటాడేంటనా? అసలు మా అమ్మ ఎందుకు చచ్చిపోతానా? నరకం పగవాడి కూడా రాకూడదు. ఏం మాట్లాడమేంటన్నా? ఆడు చెప్పింది అబద్ధం చెప్పు. ఆడు చెప్పింది అబద్ధం చెప్పనా? యోగి, అతను చెప్పింది నిజమే. అవును అంకుల్, అమ్మమ్మ ఈ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేవారు. ఇందాక మీరు తీసుకెళ్తుంటే చూసి ఆ ఆంటీని తీసుకొచ్చా. ఇదిగో మీ అమ్మగారు తెచ్చుకున్న వస్తువులు, ఉత్తరాలు. Too late, yaar. You couldn't even see her face for the last time. మా అమ్మ అన్న, మా అమ్మ అన్న, గత జన్మలో చేసిన పాపాలు ఈ జన్మలో తగులుతాయంటారు కాదన్న. ఏ జన్మలో ఆ జన్మలోదే, ఎప్పుడు తప్పుడే. మంచికైనా చెడ్డగానే కత్తి పడడం పాపం అన్న, పాపం. ఇదిగో ఇలా మా అమ్మ, మా అమ్మ, మా మా నిన్ను బాగా చూసుకోవాలని నేను ఈ ఊరు వచ్చానమ్మా. ఆఖరికి చివరి చూపు కూడా నోచుకోలేదు. ఇంకెప్పుడమ్మా నువ్వు నాకు కనిపిస్తావు? ప్రసాదు, ఇట్రా రారా. అమ్మా, అమ్మా, ఎందుకురా ఏడుస్తావు? నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను? నీతోనే ఉన్నాను. ఆడుకుందామా? ఆడు ఆడు ఆడు. అమ్మా, 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 అమ్మా.
ओह माय गॉड, बहुत ही इमोशनल सीन था यार. ओके, एज इट इज़ क्लाइमैक्स सीन, आई गेस दिस इज़ द एंड ऑफ द मूवी बिकॉज कोटा श्रीनिवास राव जी मेन विलन लग रहे हैं, जिनको उनके ही पास काम करने वालों ने लाइक जो डिसेबल पर्सन थे ना, उन्होंने ही मार दिया है. एंड इट्स गुड टू सी कि इनकी अच्छाई की वजह से एक बुरा पर्सन भी चेंज हो गया लेकिन. बट स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यू नो अनाथ बोल रहे हैं एंड ये सब लोग, चेहरा उन्होंने नहीं देखा है. सो आई वॉज लाइक आई हैड सम सेकेंड थॉट्स, क्या लाइक उनकी माँ ही है क्या, मुझे डाउट आ रहा था. बट आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट कि क्यों उनकी माँ लाइक ये साथ में नहीं रहते हैं, क्या क्यों अलग रहते हैं. बट बाद में उन्होंने जिस तरह से कहा कि मैं शहर आया हूँ तुमको अच्छा देखने के लिए, शायद उन्होंने उनको गाँव में छोड़ के शहर आते हैं कमाने के लिए. एंड दैट्स हाउ आई थिंक ही इज़ नॉट अवेयर दैट शी केम टू हिम. लाइक उन्होंने शायद बताया नहीं होगा, सरप्राइज़ होगा, ऐसा कुछ होगा कि उनको बिना बताए वो आ जाती हैं इनको ढूंढने के लिए इनके पास. शायद उनको इसलिए पता नहीं है कि मेरी माँ इसी शहर में है. बट दैट्स वेरी सैड. बिना उनको पता चले ही जिस तरह से उन्होंने अनाथ बॉडी समझ के जिस तरह से सारे जो बोल रहे थे ना एक अच्छी तरह से रिचुअल्स, जो फाइनल लास्ट रिचुअल्स बोलते हैं उसको निभाया इन्होंने. इवन दो इज़ नॉट अवेयर बट आई वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिम. लास्ट टाइम भी उनका चेहरा देखने को नहीं मिला. यू नो जिस तरह से बेटा अपनी माँ को देखना चाहता है एक बार, आखिरी बार, एंड उनको लास्ट गुड बाइज नहीं बोल सके, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था. बट आई वॉज होपिंग कि लास्ट सेकेंड तक उनको पता चलेगा, वो देख पाएंगे एटलीस्ट. बट हुआ नहीं. अगर वो बीच में जो कोटा श्रीनिवास राव जी के जो राउडीज़ हैं, अगर वो बीच में ना आते तो शायद इनको टाइम मिलता, वो देख पाते. बट एवरीथिंग इज जिस तरह से वो बोल रहे थे ना, पूरा कर्मा है, जो भी बुरा करते हैं दूसरे जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में होता है. शायद कुछ हुआ होगा. लाइक ये बोल रहे थे कि सही के लिए या फिर गलत के लिए, अगर खंजर उठाया है, वेपन उठाया है तो गलत ही है. सो आई थिंक ही हैज़ किल्ड फ्यू पीपल. पता नहीं, वो वैसे ही मीनिंग आ रहा था. शायद इसलिए उनको लग रहा है कि मैंने कुछ लोगों को मारा है, शायद इसलिए भगवान मुझे इस तरह से मुझे पनिश कर रहे हैं. मेरी माँ को आखिरी बार भी देखने को नहीं दिया गया है, देखने का मौका नहीं मिला है मुझे. ठीक है, बट दैट्स सो हार्ट ब्रेकिंग. एज सून एज आली आके बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ही है बोल के, इंस्टेंटली उनका रेट जो है, उनको थप्पड़ तो मारते हैं बट द नेक्स्ट सेकेंड उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं. लाइक द इंस्टेंट पेन, द इंस्टेंट पैनिक, द रिग्रेट ही हैज़. वाह, प्रभास वॉज सो ऑसम. उनके इमोशंस, उनके चेहरे के ऊपर, उनकी आंखों में वो दर्द, वो लाल हो जाना, दैट वॉज टू गुड. लाइक ही वॉज रियली गोइंग थ्रू दोज इमोशंस, कि उन्होंने सच में उस तरह का मोमेंट जिया है बोल इस तरह उनकी आंखों में दिख रहा था ना. वाह, दैट वॉज टू गुड. एंड थोड़ा मुझे कॉन्टेक्स्ट लग रहा था कि बीच में नयनतारा जो आ गई थी, वो उनके घर में रह गई थी, वो थोड़ा लग रहा था कि शायद बिना इनको पता चले कि इनकी माँ है बोल के वो हेल्प कर रही थी शायद. एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट कि सब लोग को शायद बाद में पता चला होगा. बिकॉज अगर पहले ही पता होता तो प्रभास को बोलते थे, लाइक दैट्स अंडरस्टूड कि उनको पता चल जाता. बट माइट बी दे डिडंट नो दैट प्रभास जी की माँ है, बिना पता चले ही वो हेल्प कर रहे थे. बट ओ माय गॉड, मुझे लग ही रहा था. फाइट्स ऑसम लग रहा था जिस तरह से उनका हाइट इतना टेरिफाइंग लग रहा था यार राउडीज़ के सामने. इंटिमिडेशन भी बहुत लग रहा था जिस तरह से मार रहे थे. फाइट सीक्वेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे लग रहे थे. एंड कोटा श्रीनिवास राव जी का जो भी सेक्शन था वो अच्छा लग रहा था. लाइक वो मैं लाइक मुझे अगर मैं कहूँ तो पहली बार अगर मुझे किसी विलन पे गुस्सा आया तो कोटा श्रीनिवास राव जी है. मैंने बचपन में एक मूवी पता नहीं कौन सा है, मैंने देखा था. तो लाइक जब तब हमें पता नहीं चलता है कि एक्टर्स हैं, एक्टिंग करते हैं, सच में उतने बुरे नहीं हैं, सच में ऐसा काम नहीं करते हैं. बट उस टाइम बचपन में हमको पता नहीं लगता है उतना. लाइक वॉट एवर वी सी वी ट्राई टू पुट आवर इमोशंस ऑन दैट. ये बहुत बुरा पर्सन है, तो वैसे मैं उनको बहुत हेट करती थी. बुरा है इंसान, इसको मारा वैसा लगता था. बट ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ वेरी टैलेंटेड. और उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि ही इज़
जस्ट वेरी वर्सटाइल, बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करते हैं. एंड ही पास्ड अवे आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक. एंड लाइक जो भी वेटरन एक्टर्स हैं जो 90s में 80s में हम लोगों को बहुत ही अच्छी मूवीज़ दिए हैं, बहुत ही ग्रेट स्टोरीज दी है अपनी एक्टिंग से, जिसमें अवार्ड जीते, उन लोगों को एक के बाद एक जाते हुए देखना बहुत बुरा लगा है. बट दैट्स हाउ लाइफ इज़. सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ इट्स लाइक कितने लेजेंडरी रोल्स किए उन्होंने इस मूवी में. लाइक उनको देख के ऐसा लग रहा था कि तो याद आ रही थी उनके जो भी लेजेंडरी रोल्स हैं, जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलते हैं वो. बट यस, उनका सीन के बाद वो जो उनके पास डिसेबल्ड पर्सन है, आई थिंक प्रीवियस सीन्स में उनको बचाया, जो मरते हुए रहते हैं, योगी ने प्रभास ने बचाया है. सो दैट्स व्हाई ही चेंज हिज हार्ट कि वो अच्छा इंसान है, हमारी जान बचाई है, सो वी शुडंट किल हिम बोल के. अच्छा लगा यार. लाइक द वे ही वॉज गोइंग फास्ट, मुझे लग रहा था वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं. बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई खंजर लेके, नाइफ लेके आता है प्रभास को मारने के लिए. एंड ही स्टॉप्स दैम, ही स्टॉप्स हिम. वो अच्छा लगा कि ही किल कोटा श्रीनिवास राव एंड देन ही केम टू हेल्प हिम ऑल्सो. वो भी अच्छा लग रहा था. एंड जिस तरह से बोलते हैं कि तुम जाओ बोल के, अच्छा था. एंड ही सेड सैल्यूट मार के चले जाते हैं. प्रभास के माइंड में यही था कि एक अनाथ शव है जो उसको लास्ट राइट्स देने हैं उनके. वो माला भी उसके लिए जाते हैं. उनके मन कितना साफ होगा कि अनाथ शव है उनके जानने के बावजूद भी वो इतना हेल्प करने की, इतना आउट ऑफ देयर एक्सटेंट, आउट ऑफ देयर रीच वो जाके हेल्प कर रहे हैं. सो भाग के आके डाल देते हैं. लास्ट उनके पैरों पे वो माला गिर जाती है. बट द नेक्स्ट सेकेंड ही कम्स टू नो दैट्स हिज ओन मदर, बर्थ मदर. एमोशंस पूरे एक्सप्लोर हो गए हैं. बहुत रोना आ रहा था. लाइक मुझे इस तरह के सीन्स में एमोशनल सीन्स में मुझे जल्दी रोना आ जाता है. आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ. पता नहीं, मेरी आंखें ईजिली ग्लिसन होने लगती हैं, ईजिली आंखों में आंसू आने लगता है. बट मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, बट होता नहीं है. बिकॉज आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर माई पेरेंट्स. सो एंड लास्ट ईयर जैसे कि मैंने कहा कि 1.5 year बैक मैंने अपनी माँ को खोया है. सो आई वाज लाइक उनकी भी याद आ रही थी. या बहुत ही बुरा लग रहा था उनको देख के. एंड वो मैंने अब फिर कब देखूँगा तुम्हें बोल के उनके वो बेडरूम जो था वहाँ बैठ के रोते हुए रहे, कब मैं फिर से कब देखूँगा तुम्हें. एंड देन ही सीज हिज मदर स्टैंडिंग देयर एंड कॉलिंग हिम. एंड आई हैवंट गॉन एनीवेयर. मेरे हमारे साथ ही उनको शायद उनका एक बचपन से वो नाचने का कुछ होगा. सो द वे शी सेड कम लेट्स प्ले एंड देन दे बोथ स्टार्ट्स डांसिंग. लाइक आई थिंक दैट्स अ स्वीट मेमोरी ही हैज़ एंड ही हैज़ टू लिव हिज होल लाइफ कैरिंग दैट. एनीवेज उनके साथ एटलीस्ट नयनतारा है, चंद्रमोहन जी हैं, अली है, और वो छोटा सा बच्चा भी है. विल गेट यूज्ड टू इट. लाइक लाइफ है तो अपनाना ही पड़ेगा जो भी सिचुएशंस आ गए. बट अच्छा था. आप लोग बताएं आपको क्या लगता है. कमेंट्स में जरूर लिखिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले रेश में. तब तक के लिए बाय.